गुजरात की वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन पर हमेशा ही अस्पतालों के साथ मिलीभगत के आरोप लगते आए हैं। ये मिलीभगत किस कदर साबित हो रही है, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। वड़सर में विश्वामित्री नदी के किनारे कुछ कबाड़ वाले अपना कबाड़ इकट्ठा करते हैं। उत्तरायण के दिन यहाँ आग लग गई थी और उसके बाद ये समूचा मामला उजागर हुआ और उसके बाद भी जो कार्यवाही हो रही है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब यहाँ हम देख रहे हैं चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वेस्ट बिखरा पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने की एक खास प्रक्रिया होती है और सभी अस्पतालों को उसे फॉलो करना होता है, लेकिन अस्पतालों द्वारा किस कदर यहाँ कॉरपोरेशन के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ या कबाड़ियों के साथ मिलीभगत कर बायोमेडिकल वेस्ट किस तरह खुले में डिस्पोज किया जा रहा है, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ कचरे की भरमार है और उस कचरे में ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट साफ देखा जा सकता है। कई इंजेक्शन ऐसे हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस्तेमाल हुई है, जबकि कई ऐसी हैं जो इस्तेमाल नहीं भी हुई हैं। जहाँ देखो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बॉटलें बिखरी पड़ी हुई देखने मिल रही है। यही नहीं, इंजेक्शन के साथ साथ दवाइयाँ खुले में इसी तरह डिस्पोज कर दी गई है। ना सिर्फ दवाइयाँ, यहाँ खून से भरी हुई बोतलें खुले में पड़ी हुई दिख रही है। यहाँ पर सिरिंज जो लगाते हैं, यहाँ पर सलाइन जो लगाते हैं, सब कुछ बायोमेडिकल वेस्ट में जो आता है, हर एक चीज़ यहाँ देखने मिल रही है। दवाइयों के बक्सों से लेकर हर चीज़ को खुले में डिस्पोज कर दिया गया है और ये वडोदरा शहर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। ये देखिए, एक्सपायरी दवाइयों का जत्था, पूरे के पूरे बक्से यहाँ खुले में फेंक दिए गए हैं। इसकी एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2023 और इसी तरह यहाँ दवाइयों का जत्था, इंजेक्शनों का जत्था, हर एक चीज़ यहाँ जो अस्पताल में इस्तेमाल आती हैं, सलाइन के लिए जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ कबाड़ में देखने मिल रही है। શું નામ છે કાકા? આજે આગ લાગી હતી, તમારી દુકાન હતી? હા, મારી દુકાન. અને આ દુકાનમાં શું સામાન હતો બધો? ભંગારનો શું સામાન રાખ્યો હતો? ભંગારના રમકડા છે, પ્લાસ્ટિકની બકેટો છે, ટોકરા છે, આ બધો પ્લાસ્ટિકનો સામાન આવે એ બધો રાખેલો હતો. પણ આ દવાના ઇન્જેક્શન છે, દવાની બોટલો છે, બધું જ છે? દવાખાનું નહીં, આ જે કચરાની ગાડીમાં માલ આવે ને એ માલ લેતા અમારો ધંધો છે. 50 વર્ષનો મારો ધંધો છે આ એક. એટલે એ કચરાની ગાડી કોણ લઈને આવે? હવે એ તો રિક્ષા પાડેલ રિક્ષાવાળા આવે ને, એ કચરા પેટીમાં વીણે, રિક્ષામાં બોરામાં ભરે, બોરામાં લઈને આવે મારી પાસે. પણ તમે જોતા તો હશો ને, જ્યારે માલ તમે લો છો એના પૈસા આપતા હશો ને એમને? આ દેખાઈ જ ને આપણને સામે. આ બધો દવાનો ને બધો સામાન લીધો ને? દવાનો નહીં, બધું મિક્સ આવે એમાં, દવાનું જ આવે એવું કઈ નથી. આખા પોટલા ને પોટલા તો દવાના ને ઇન્જેક્શનો ના બધા ભરેલા છે, ખાલી બોટલો છે બધી. નાની આવે ને 4 કિલો 5 કિલોની પોટલી આવે ને, અમે ક્યાં ના કહી દઈશ તમને, આવે ઈ તો તમે એને જોઈને તો લેતા હશો ને કે આમાં દવાઓ છે કે દવાઓની ખાલી બોટલો છે, એવું બધું ના લેવાય એવું તમને ખબર હોવી જોઈએ ને. ખાલી જ આજી માલ આવે ને, વેસ્ટ ખાલી જોઈએ. પણ વેસ્ટ બાયોમેડિકલ વેસ્ટ કહેવાય અને ખુલ્લામાં ના ડિસ્પોઝ થાય એવી તમને ખબર છે? અચ્છા, એ અમને એટલો કોઈ નોલેજ નહોતો. જીપીસીબી ના અધિકારી અહીંયા આવ્યા હતા, એમણે કઈ એવું કીધું તમને? કઈ અહીંયા જીપીસીબી ના પાલિકા વાળા આયા હતા, કોર્પોરેશન વાળા એમણે તમને કઈ કીધું કે આને આવી રીતે ખુલ્લામાં ના રખાય એવું કઈ કીધું? તો કરીને બેન કીધું, બધું કીધું. ખોટું શું કામ બોલવાનું, અમારી ઉંમર થઈ ગઈ હવે. તો આજે પહેલી વાર કીધું કે 50 વર્ષનો તમારો ધંધો, તમને આજ સુધી ખબર નહોતી એવી? અમે કરી જ રહ્યા છે ને, અમે તમારી યારે તો ખોટું નથી બોલતા. 50 વર્ષ લે એ સાફ કરી એવી છે. એટલે હંમેશા આ હોસ્પિટલનો કચરો છે એ અહીંયા જ આવે છે? બધો કચરો મિક્સ આવે, હોસ્પિટલનો જ ન આવે, બજારનો કચરો આવે, આવ આવે. કાકા, હોસ્પિટલોની આખી ઠેલીઓ તો હોસ્પિટલોની ભરેલી છે. નહીં, આ ભરે. હવે ઓલો વેસ્ટ પ્લાન્ટ છે કે નહીં, એ પ્લાન્ટમાં નાખે ને, પ્લાન્ટમાંથી. તમારી પાસે અહીંયા કોઈ લાયસન્સ છે જીપીસીબી નું? નહીં, કોઈ નથી મારી પાસે. કોઈ પાલિકાનું લાયસન્સ આ બધો આ કચરો ભેગો કરો? કઈ નથી. અને જે કચરો આવે પાલિકા વાળા આપી આવે છે કે હોસ્પિટલ વાળા? રિક્ષા વાળા. પાલિકા વાળા કેવી રીતે આપે? રિક્ષામાં જે લાવે ને વીણીને મજૂર લોક, એ આપે. પાલિકા વાળા કેવી રીતે આપતા? શું ભાવ આપો આ તમે આ મેડિકલ વેસ્ટ જે લો છો, બોટલો ખાલી, ઇન્જેક્શન બધી, એનો શું ભાવ? એ તો હવે આ ભળી ગયું બધું, અમે 15 રૂપિયા કિલો લેતા.
15 રૂપિયા કિલો લીધા અમે. કશું લાયસન્સ નથી આ ચલાવવા માટે નથી. અને જગ્યા છે એ કોની છે? ભીખાભાઈ બારિયાની. ભીખાભાઈ બારિયા. અને બધી જગ્યા એની છે. અને તમને અહીંયા ભાડે પર આવેલી છે? હતી. કેટલું ભાડું, કેટલા વર્ષોથી અહીંયા જ આ ચલાવો? મને 15 વર્ષ થઈ ગયા અહીંયા. મને પેલા 1200 રૂપિયા ભાડું હતું, હવે 1800 છે. वडोदरा निकट वडसर में, वडोदरा में ही ये इलाका आता है और यहाँ डंपिंग साइट जैसा बना रखा है, कबाड़ियों का गोदाम है। बहुत सारे कबाड़ी यहाँ वडोदरा शहर का कचरा एकत्रित करते हैं और उसी में बायोमेडिकल वेस्ट मिलने का पर्दाफाश हुआ है। उसके बाद अचानक पालिका के अधिकारी और जेपीसीबी के अधिकारी हरकत में आए हैं और आज ही यहाँ ये બોર્ડ લગાયા ગયા है कि આ જગ્યામાં પડેલા વેસ્ટને અનઅધિકૃત રીતે સંગ્રહ કરેલ હોવાથી મ્યુનિસિપલ કમિશનર વડોદરા મહાનગરપાલિકાની પરવાનગી સિવાય નિયત દંડ ભરપાઈ કર્યા સિવાય દૂર કરવો નહીં. જો તેમ કરવામાં આવશે તો જીપીએમસી એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના ધારા ધોરણ મુજબ વેસ્ટ નિકાલની કાર્યવાही કરવાની રહેશે. सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह संग्रहित नहीं किया जा सकता, लेकिन संग्रह सालों से हो रहा है, लेकिन पालिका के अधिकारी या जीपीसीबी के अधिकारियों की इस पर कोई ना नजर है, ना ही उनकी कोई लगाम है। और खुले में जो डिस्पोज मेडिकल वेस्ट हुआ है वो वडोदरा शहर की नागरिकों की जान पर खतरा पैदा कर रहा है। वडोदरा महानगर पालिका को जो कचरा मिलता है उसमें जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो इस तरह कॉरपोरेशन की गाड़ियों के पीछे लटकाकर यहाँ ले आया जाता है और यहाँ उसे छोड़ दिया जाता है और वही चीज़ फिर खतरा समान साबित हो सकती है। कॉरपोरेशन का ये जो टैंकर है, जो ये वाहन है, ये यहाँ कचरा फेंकने ही आया था, लेकिन वीएनएम का कैमरा देखते ही बिना कचरा खाली किए टैंकर यहाँ से नदारद हो गया है। वडोदरा शहर से गुजरती विश्वामित्री नदी के बिल्कुल किनारे सटा हुआ ये इलाका है जहां इस तरह कबाड़ इकट्ठा किया गया है और ये समूचा मामला तब उजागर हुआ जब यहां आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को बुलाया गया। दमकल विभाग ने यहां आकर देखा कि यहां तो बायोमेडिकल वेस्ट भरा हुआ है। ऐसे में जीपीसीबी को और वडोदरा कॉरपोरेशन को मामले की जानकारी दी गई। जब मामले की जानकारी दी गई तब ये सारा उजागर हुआ कि यहाँ तो बायोमेडिकल वेस्ट के भंडार भरे हुए हैं जो शायद सालों से इसी तरह यहाँ स्टोर किए जाते होंगे और जब आग लगी तब ये समूचा मामला उजागर हुआ है। इस मामले हमने जीपीसीबी के अधिकारी जितेंद्र महिड़ा से भी बात कर जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस घटना के बाद जीपीसीबी ने क्या कदम उठाए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन की रहम नज़र के तले चलने वाली हॉस्पिटल्स बायोमेडिकल वेस्ट का सही डिस्पोजल नहीं करती है, जो वडोदरा शहर के नागरिकों के लिए खतरा समान साबित हो सकता है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी एक और घटना जो हमेशा ही उजागर होती आई है, उजागर हुई है कि वडसर में विश्वामित्री ब्रिज के किनारे एक आग लगी थी और वहां बायोमेडिकल वेस्ट पाया गया, जिसके ऊपर जीपीसीबी द्वारा भी कार्रवाई की गई है। फिलहाल मैं जीपीसीबी कार्यालय में यहाँ के अधिकारी जितेंद्र महिड़ा से मिलने आई हूँ। उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई जीपीसीबी कर रही है। सर, किस तरह के एक्शन लिए गए हैं, ये जो पूरी घटना सामने आई है उस पर? जो 14 तारीख को फायर की जो इंसिडेंट हुआ था उसके बेस पे 15 तारीख को और 16 तारीख को 2 दिन हमारी इंक्वायरी हुई थी साइट पे। वहाँ पे हमको देखने को मिला है कि ज़्यादातर वहाँ पे सैलाइन बॉटल की वाटर और रिजेक्टेड जो मेडिसिन रहती है वो और उसकी खाली बोतलें मिली थी। कोई प्योर ऐसा कंटामिनेटेड वेस्ट देखने को नहीं मिला था। हमारी इंक्वायरी चालू है। वहाँ पे कोई बंगार वाला था, वो वहाँ पे छोटे छोटे बंगार वाले से ये प्लास्टिक का और कांच की बोतल लेके उसको सेग्रीगेट करके वो इलीगल बेचने का काम करता था। तो हमको हमारी अभी भी तपास चालू है कि अगर कौन सी हॉस्पिटल से आया है वो हम इंक्वायर कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि छोटे कबाड़ वाले से वो कबाड़ खरीदता था, तो उसकी भी जांच कहीं ना कहीं हो रही है। तो क्या पालिका कर रही है या पुलिस द्वारा इसकी जांच करवाई जाएगी? किस तरह बड़ी हॉस्पिटल्स, कोई ना किसी ने, कोई हॉस्पिटल ने, कोई क्लिनिक ने ही ये फेंका होगा, तो उस तक कैसे हम पहुंच सकेंगे? हमारी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ऐसा जानने को मिला है कि छोटे छोटे कबाड़ वाले सिटी की हॉस्पिटल से ये प्लास्टिक और ये कांच की बोतलें कलेक्ट करके ये बड़े कबाड़ वाले को देते थे।
तो हम वही उससे ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ से ला रहे थे हॉस्पिटल। अगर किसी भी हॉस्पिटल का हमको मिलेगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके कोई सैंपल लिए जाते हैं या जांच की जाती है? किस तरह की ये जांच होती है? हमने वहाँ बंगार में से कुछ कागज़ें हमको मिले हैं, वो हम एनालिसिस कर रहे हैं। उनसे अगर कोई नाम मिलता है हॉस्पिटल का तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जेपीसीबी और वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जांच की जा रही है और आशा करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट आखिरकार कौन खुले में डिस्पोज करता है उसकी तह तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे वडोदरा शहर के लिए कहीं ना कहीं खतरा समान साबित हो सकता है। वडोदरा में बड़े बड़े और छोटे छोटे सैकड़ों हजारों अस्पताल है और उन अस्पतालों द्वारा चंद मुनाफे के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का इस तरह डिस्पोज किया जा रहा है। इसमें वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सालों से अगर बायोमेडिकल वेस्ट यहाँ डंप हो रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है और उसकी कानों कान किसी को भनक ना हो, ये मानना थोड़ा सा सोच से भी परे है। जब अब ये पूरा मामला वडोदरा शहर के सामने आया है तब वडोदरा कॉरपोरेशन के अधिकारी और जेपीसीबी इस पर क्या कार्यवाही करता है उस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा शहर को डस्टबिन फ्री बनाने का एक बीड़ा तत्कालीन कमिश्नर डॉक्टर विनोद राव ने उठाया था और उस वक्त से डस्टबिन हटा लिए गए थे। वडोदरा शहर को डस्टबिन फ्री तो कर दिया गया, लेकिन गार्बेज फ्री नहीं कर पाए। वडोदरा का इस साल स्थान 33वां आया है। पूरे देश में स्वच्छता के मामले हम 33वें स्थान पर है, जो पिछले साल 14वें स्थान पर थे। उसके आगे 8वें स्थान पर थे। यानी वडोदरा शहर लगातार स्वच्छता के मामले पिछड़ता जा रहा है और उसके बावजूद वडोदरा शहर में वडोदरा की ही जनता के पैसों से खरीदी हुई कचरा पेटियों के क्या हाल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वडसर में विश्वामित्री नदी के किनारे जो डंपिंग साइट जैसा एक कबाड़ का गोदाम है, जहां बहुत सारे कबाड़ियों ने कचरा इकट्ठा कर रखा है और यहीं से वडोदरा शहर का कचरा यहां आता है, सेग्रीगेट होता है, बिकता है। और वहीं ऐसी ढेरों वडोदरा महानगर पालिका की कचरा पेटियां पड़ी हैं। वडोदरा में कचरा पेटियां हटा ली गई है, लेकिन कचरा तो वहां आज भी देखने मिलता ही है। वडोदरा शहर में जगह जगह कूड़े आपको देखने मिलेंगे ही, कचरों के ढेर देखने मिलेंगे ही, क्योंकि डस्टबिन नहीं है, लेकिन लोगों के कचरा डालने की उचित व्यवस्था भी नहीं है। और ऐसे में वडोदरा शहर में जगह जगह कचरा पेटी तो आपको नजर आएगी ही। वडसर में वडोदरा कॉरपोरेशन की डस्टबिनों का भरमार है, जो सालों से शायद यहाँ पड़ी है और अब उसे गैस कटर से काटकर कबाड़ में बेचने की कवायद भी की जा रही है। उससे भी वडोदरा महानगर पालिका को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर नुकसान होता है तो वो है वडोदरा शहर की जनता को। फिर एक बार बजट आने वाला है और इस बार चुनावी बजट आएगा। ऐसे में बजट क्या होता है उस पर तो नज़र बनी ही रहेगी, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जनता के टैक्स से पैसों से जो खर्च किया जाता है उसकी कैसी फिजूल खर्ची डस्टबिन के नाम पर हुई है वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। यहाँ चारों ओर नज़र घुमाएं तो सिर्फ कॉरपोरेशन के डस्टबिन नज़र आते हैं, जो सालों से यहाँ डंप कर दिए गए हैं। वडोदरा कॉरपोरेशन में कुछ सालों पहले ही 7 गांवों को शामिल किया गया है। वहाँ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जैसी कोई ठोस व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में वहाँ भी कूड़ेदानों का भरमार है। ये जो कचरा पेटियां यहाँ डंप कर दी गई है, जो अब कबाड़ बना दी गई है, उसे अगर ग्राम्य इलाकों में रख दिया जाए तो वहाँ की कचरे की समस्या है वो भी हल हो सकती है। लेकिन इन डस्टबिनों को कबाड़ियों को बेच दिया गया है और अब उसे गैस कटर से काट कर कहीं ना कहीं फिर एक बार लाखों करोड़ों रुपए इस लोहे के कबाड़ से कमाने की मंशा भी कॉरपोरेशन की लग रही है। लाखों करोड़ों रुपए
खर्च कर खरीदी गई डस्टबिन अब कबाड़ खाने में है और कबाड़ियों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन नुकसान होता है वडोदरा शहर की जनता का। वडोदरा कॉरपोरेशन की यही दिक्कत रही है कि विकास कार्यों के नाम पर तरह तरह के खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर साल 2 साल में वो खर्च फिजूल खर्ची ही साबित होते हैं और ऐसे करोड़ों रुपए वडोदरा में बर्बाद हो रहे हैं। वडोदरा में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी ब्लूप्रिंट तैयार कर और पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे खर्च पहले कर चुके हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सत्ता बदल जाती है, जनप्रतिनिधि बदल जाते हैं, अधिकारी बदल जाते हैं। ऐसे में पिछले अधिकारियों ने, पिछले जनप्रतिनिधियों ने जो काम किया था वो सब बेकार हो जाता है और कुछ ऐसा ही यहाँ डस्टबिन के मामले में नजर आ रहा है। वडोदरा शहर में विकास कार्यों के नाम पर हो रहे इस खर्च पर वडोदरा शहर के नागरिक कहीं ना कहीं सवाल उठाए और पैनी नजर रखे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए।